आंधियां बन के आए जिंदगी के फिकर, आंधियां बन के आए जिंदगी के फिकर। कौन है तेरा रचने वाला, है भरोसा तेरा किधर? कौन है तेरा रचने वाला, है भरोसा तेरा किधर? गिन गिन के स्तुति करो, बेशुमार उसके दानों के लिए। अब तक उसने संभाला हमें, अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक उसने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। गिन गिन के स्तुति करो। ದೇವರ ನಾಮಕ್ಕೆ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಲಿ. ದೇವರು ಈ ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಹೇಳೋಣ. ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ದೇವರೇ, ನನ್ನಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧ ಹೃದಯವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸು, ನನಗೆ ಸ್ಥಿರಚಿತ್ತವನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ ನನ್ನನ್ನು ನೂತನಪಡಿಸು. ನಿನ್ನ ಸನ್ನಿಧಿಯಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ತಳ್ಳಬೇಡ, ನಿನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮವನ್ನು ನನ್ನಿಂದ ತೆಗೆಯಬೇಡ. ನಿನ್ನ ರಕ್ಷಣಾ ಆನಂದವನ್ನು ನಾನು ತಿರುಗಿ ಅನುಭವಿಸುವಂತೆ ಮಾಡು. ನನ್ನಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸು, ನನಗೆ ಆಧಾರನಾಗು. ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡೋಣ. ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಬಂದಿರುವಾಗ ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಹೇಳೋಣ. ಕಳೆದ 3 ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ದೇವರು ತನ್ನ ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ವಚನಗಳಿಂದ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಹೇಳೋಣ. ಈ ದಿವಸ ಮತ್ತೊಂದು ಸಲ ದೇವರು ತನ್ನ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ, ಬಲಪಡಿಸಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. ಪ್ರೀತಿ ಸ್ವರೂಪನಾದ ತಂದೆಯಾದಂಥ ದೇವರೇ ಸ್ವಾಮಿ, ಕೃಪಾಭರಿತನಾಗಿ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಆವರಿಸಿಕೊಂಡು ಇದುವರೆಗೆ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀ ಸ್ವಾಮಿ. ಅಪ್ಪ, ಈ ದಿವಸಗಳು ಬಹಳ ಕಠಿಣವಾದಂಥ ದಿವಸಗಳಿದ್ದಾಗಲೂ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಉಂಟು ಸ್ವಾಮಿ. ನಿನ್ನ ಒಂದು ಸಹಾಯದಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಇದುವರೆಗೆ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀ. ಈ ದಿವಸ ನಾವು ಜೀವಿತರ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯೇ ಸ್ವಾಮಿ. ನಿನ್ನ ದಯದಿಂದಲೇ ನಾವು ಈ ದಿವಸ ಜೀವಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಕರ್ತನೆ. ಇಡೀ ಲೋಕದಲ್ಲಿ, ಇಡೀ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ, ಇಡೀ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರಾಂತದಲ್ಲಿ, ಮುಂಬೈ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ವಿಧ ವಿಧವಾದಂಥ ಸಂಗತಿಗಳು ನಡೆಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದು ಸ್ವಾಮಿ. ಆದರೆ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ನಡೆಸಿದಕ್ಕಾಗಿ ನನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ಈ ದಿವಸ ಸ್ವಾಮಿ ನಮ್ಮ ಸಭೆಗಾಗಿ ನನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸಭಿಕರನ್ನು, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ಹೆಸರಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಕುಟುಂಬಗಳನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ. ಕರ್ತನೆ, ಒಂದೊಂದು ಕುಟುಂಬಗಳಿರತಕ್ಕಂಥ ನಾನಾ ವಿಧವಾದಂಥ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬಲ್ಲಂಥ ದೇವರಾಗಿದೆ. ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ದೂರ ಮಾಡು. ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಮಿ, ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಏನೇನು ಕೊರತೆಗಳುಂಟು ಆ ಕೊರತೆಗಳನ್ನು ನೀಗಿಸು. ಹಣದ ಕೊರತೆಯನ್ನು ದೂರ ಮಾಡು ಸ್ವಾಮಿ. ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಂದ ಪೀಡಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ನೀನು ಬೆಳೆಸಿ ಕರ್ತನೆ, ನಿನ್ನ ಶುದ್ಧಾತ್ಮವನ್ನು ಅವರಿಗೆ ದಯಪಾಲಿಸಿಕೊಡೆಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಯಾರ್ಯಾರು ಸ್ವಾಮಿ ಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಸ್ವಾಮಿ, ಏನು ಮಾಡಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಅನೇಕ ಚಿಂತೆಗಳಲ್ಲಿರುವಾಗ ನೀನೇ ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯಕನಾಗಿದ್ದು ನಡೆಸಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ. ನಿನ್ನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊಡು. ಹೊಸ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು, ಹೊಸ ದ್ವಾರಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಿ ಸ್ವಾಮಿ. ಅವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಡೆಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅನೇಕರು ಆತ್ಮಿಕವಾದಂಥ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದೆಯಾದರೆ ಸ್ವಾಮಿ, ಅವರೆಲ್ಲರಿಗಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯಗಳಿಂದ ನಾವು ಹೆಚ್ಚಳಪಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಸಲ ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಬಂದು ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ನಾವು ಬಲ ಹೊಂದುವಂತೆ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯನ್ನು ನೀಡೆಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಸ್ವಾಮಿ, ಯಾರ್ಯಾರು ತಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯ ಜೀವಿತಕ್ಕಾಗಿ ಅಲಕ್ಷ್ಯ ಭಾವದಿಂದ ನೋಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೋ ಅವರೆಲ್ಲರನ್ನು ಸ್ವಾಮಿ ಹಿಂತಿರುಗಿ ನಿನ್ನ ಕಡೆಗೆ ಬರಮಾಡೆಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ.
ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ, ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕೂಟಗಳಿಗಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸಂಡೇ ಸ್ಕೂಲ್ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಅವರನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸು. ಮುಂದಿನ ವಾರದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ಈ ಒಂದು ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಉಂಟು, ಅದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯಕನಾಗಿದೆ ನಡೆಸು. ಅನೇಕ ಯವನಸ್ಥ ಮಕ್ಕಳ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ಒಂದು ಸ್ಥಿರವಾದಂತಹ ಮನಸ್ಸುಗಳನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡು. ಮುಂದೆ ಅವರ ಭವಿಷ್ಯಗಳನ್ನು ನೀನೇ ಶೃಂಗರಿಸಿ ನಡೆಸೆಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. SSC ಮತ್ತು HSC ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಪರೀಕ್ಷೆ ಇರಲಾರ್ದೆ ಕಾಮನ್ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಮುಂದೆ ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ, ಯಾರ್ಯಾರು ಏನೇನು ತಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಕರಿಯರ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಏನೇನು ಸಹಾಯಕನಾಗಿದೆ ನಡೆಸು ಸ್ವಾಮಿ. ಕರ್ತನೆ, ಇವೆಲ್ಲರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ, ಗಡಿಬಿಡಿಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ, ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ನೀನೇ ನಮಗೆ ಕುರುಬನಾಗಿದ್ದು ನಿನ್ನ ಸಹಾಯ, ನಿನ್ನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕೊಟ್ಟು ನಡೆಸು. ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಮಿ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಆತ್ಮೀಕವಾದಂಥ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳಿಂದ ತುಂಬಿಸಿ, ಆತ್ಮೀಕವಾದಂಥ ವಚನಗಳಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಿ ನಡೆಸ್ತಾ ಬರಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಯೇಸುವೆ ನಿನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಆಮೇನ್. ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿರುವ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯೇ, ನಿನ್ನ ನಾಮವು ಪರಿಶುದ್ಧವೆಂದೆನಿಸಲ್ಪಡಲಿ, ನಿನ್ನ ರಾಜ್ಯವು ಬರಲಿ, ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತವು ಪರಲೋಕದ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ನೆರವೇರಲಿ. ನಮ್ಮ ಅನುದಿನದ ಆಹಾರ ನಮಗೆ ದಯಪಾಲಿಸಿಕೊಡು. ನಮಗೆ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ನಾವು ಕ್ಷಮಿಸುವಂತೆ ನಮ್ಮ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ನೀನು ಕ್ಷಮಿಸು. ನಮ್ಮನ್ನು ಶೋಧನೊಳಗೆ ಸೇರಿಸದೆ ಕೇಳಿಯಿಂದ ತಪ್ಪಿಸು. ಯಾಕಂದರೆ ರಾಜ್ಯವು, ಬಲವು, ಮಹಿಮೆಯು ಸದಾಕಾಲ ನಿನ್ನವೇ ಸ್ವಾಮಿ. ಆಮೇನ್. ಸತ್ಯವೇದದ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಮೊದಲನೇ ಕೊರಿಂಥದವರಿಗೆ ಬರೆದಂಥ ಪತ್ರಿಕೆ 1ನೇ ಸಂಧಿ 18ನೇ ವಚನದಿಂದ ಕೆಲವು ವಚನಗಳನ್ನು ನಾವು ಓದಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ಒಂದೇ ವಚನ ನಾನು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದು 18ನೇ ವಚನ. ಮೊದಲನೇ ಕೊರಿಂಥ್ಯ 1:18. ಶಿಲುಬೆಯ ವಿಷಯವಾದ ಮಾತು ನಾಶನವಾದರ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಹುಚ್ಚು ಮಾತಾಗಿದೆ, ರಕ್ಷಣೆಯ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಇರುವವರಿಗೆ ನಮಗಾದರೂ ದೇವರ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಈ ವಚನವನ್ನು ದೇವರು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆತ್ಮ ಲಾಭಕ್ಕಾಗಿ ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ. ಪ್ರಿಯರೇ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕಳೆದ 3 ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನಾವು ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ. ದೇವರು ಉಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ. परमेश्वर जो है नहीं छोड़ेगा या नहीं बचाएगा, इन बातों को हमने सुने हैं और इसीलिए हम अपने आप को तैयार करें, अपना जीवन जो है परमेश्वर के लिए जिए, ये बहुत ही प्रामुख्य है. और इसी को आधार लेकर मैं इस समय अपने मसीही जीवन को किस तरह से हम जीना है, मैं इस बात को आज बताना चाहूँगा. आज हम सभी लोग जो है अपने जीवन के अंदर दैनिक जीवन में स्पोर्ट्स शूज दैनिक जीवन के अंदर स्पोर्ट्स शूज जो खरीदने जाते हैं तो वहाँ पर एक ब्रांड होता है पावर शूज करके. पावर शूज यानी कि आपको एक ताकत, सामर्थ देती है. रेडीमेड गारमेंट्स में अगर आप जाते हैं कपड़े लेने के लिए, आपके लिए एक पावर ड्रेसिंग मिलता है. पावर ड्रेसिंग यानी कि पावर उसमें होती है, पता नहीं सच में होती या नहीं, लेकिन पावर ड्रेसिंग है. ऑटोमोबाइल कंपनीज जो है आज पावर स्टीयरिंग कार यानी कि स्टीयरिंग के ऊपर ज़्यादा ताकत नहीं लगाना है, आराम से घूमती है, यानी कि उसके अंदर एक पावर है. ये सब चीज़ें अगर हम पावरफुली चीज़ों को लेकर चलते हैं, लेकिन क्या परमेश्वर हम मसीही जीवन के अंदर क्या बिना पावर के जीने वालों को ऐसे ही छोड़ेगा क्या? इसलिए आज परमेश्वर जो है हम सभी मसीही लोगों के लिए ये चाहता है कि हम उनके सामर्थ्य को अपने जीवन में अनुभव करें, ताकि उसके सामर्थ्य के जीवन को हम लोगों के सामने दर्शाए. फिर से मैं दोहराता हूँ, सुना इस बात को. परमेश्वर ये चाहता है कि उसके सामर्थ्य को हम अपने जीवन में अपनाए और उसे अनुभव करें और लोगों के सामने उस सामर्थ्य को दर्शाए. परमेश्वर इस बात को चाहता है और इसीलिए दूसरा इतिहास उसका 16वां अध्याय 9वां वचन के अंदर ये कहता है कि परमेश्वर की आंखें जो है इस धरती के ऊपर ऐसे ढूंढ रही है ऐसे व्यक्ति को जो उनके लिए विश्वास योग्य रहेगा और उनके द्वारा परमेश्वर अपनी सामर्थ को प्रकट करना चाहता है. तो इसका मतलब ये है कि परमेश्वर जो है हर एक व्यक्ति को, हर एक धर्मी व्यक्ति को परमेश्वर आज यहाँ पर ढूंढ रहा है करके देखते हैं. So God's supernatural power is going to be released in you and me.
परमेश्वर के एक अद्भुत सामर्थ्य जो है आज मेरे और तुम्हारे द्वारा रिलीज होकर लोगों के सामने दिखाई जाती है। तो आज हम सबसे पहले देखेंगे ये परमेश्वर की सामर्थ्य हमें कैसे प्राप्त होती है और कब प्राप्त होती है, कहाँ से प्राप्त होती है। सबसे पहले अगर हम देखते हैं, द पावर ऑफ गॉड इज रिलीज्ड इन आवर लाइफ बाय द पावर ऑफ द गॉस्पेल। सुनिए, हमारे आत्मिक जीवन की शुरुआत जो है या इस सामर्थ्य को हम कब अनुभव करते हैं? सुसमाचार की सामर्थ के वचन के द्वारा, सुसमाचार की सामर्थ के द्वारा, सुसमाचार के सामर्थ्य। अब ये क्या है? अगर हम कहेंगे व्हाट इज द गॉस्पेल, हम सभी लोग जो है यीशु मसीह को अपनाने से पहले इस सुसमाचार को अपने जीवन में सुने हैं। वी हैव हर्ड दिस गॉस्पेल, और ये गॉस्पेल, ये सुसमाचार हमारे अंदर, हृदय के अंदर कार्य करते हुए हमारे जीवन में एक उद्धार को उत्पन्न किया है। सो गॉस्पेल इज द पावर ऑफ गॉड टू सैल्वेशन फॉर एवरीवन, रोमन चैप्टर 1 वर्स 16। और इसीलिए सुसमाचार, गॉस्पेल जो है हर एक व्यक्ति के लिए परमेश्वर की ओर से मिला हुआ एक सामर्थ्य है जो उद्धार को उत्पन्न किया है। ये कोई भी जाति, कोई भी ट्राइब को नहीं देखती है, बल्कि हर एक के लिए जो है ये परमेश्वर का सुसमाचार ये उपलब्ध है। और यीशु मसीह का सुसमाचार आज हम सभी लोगों को, हर एक पुरुष, हर एक स्त्री, हर एक बेटा, हर एक बेटी, हर एक जवान को जो है अनंत काल के उद्धार के अंदर ये चलाते हैं। इट्स अ मैसेज ऑफ पावर। इसके अंदर जो है एक सामर्थ्य है, एक सुसमाचार के अंदर सामर्थ्य है। ये केवल कहानी नहीं है। बाहर से लोगों को जब सुनते हैं, कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि वे यीशु मसीह की कहानी बता रहे हैं, बट लेकिन यीशु मसीह की कहानी जो है केवल कहानी नहीं है, बल्कि ये कहानी ही स्वयं एक परमेश्वर का नरावतार लेकर, इनकारनेशन लेकर, मसीह ही हमारे लिए उद्धार लेकर आया है। सो क्राइस्ट इज द पावर ऑफ गॉड फॉर द साल्वेशन। यीशु मसीह ही मेरे लिए, तुम्हारे लिए उद्धार का एक सामर्थ को लेकर आया है। जो वचन मैंने अब पढ़ा है, 1 कुरिन्थियों का 1 अध्याय 18 वचन, क्रूस की कथा, क्रूस की संदेश जो है हम सभी के लिए सामर्थ को देती हैं। और यही सुसमाचार के बारे में पतरस जो है इस तरह से कहता है, अपोस्तल पतरस ये कहता है सुसमाचार के बारे में, ये अनंत काल का बीज है करके कहता है, जिससे इम्पेरिशेबल सीड, नाश ना होने वाला एक बीज। और इसके अंदर जो है देयर इज अ लाइफ, देयर इज अ पावर। इस सुसमाचार की जो है एक बीज की तरह है, इसके अंदर एक सामर्थ्य है, एक जीवन है। क्या करते हैं? आज मैं और आप जो है एक नया जन्म प्राप्त किए हैं, उद्धार को प्राप्त किए हैं, तो ये बीज मेरे अंदर गया है और वो बीज जो है मेरे लिए एक नया जीवन को उत्पन्न किया है। 1 पतरस का 1 अध्याय 23 वचन में हम पाते हैं। सो सैल्वेशन इज लाइक ए डिलीवरेंस। ये जो है हमारे लिए एक छुटकारा है। जितनों ने भी अनुभव किया है, सारे लोग इस बात को गवाही के रूप में दे रहे हैं, कह रहे हैं। मैं जानता हूं कि हम में से कई लोगों ने इस उद्धार को अनुभव करने के बाद उन्होंने एक तरह का फ्रीडम महसूस किया है। एक प्रिजन था, एक बंधन थे, बंधन के अंदर से हम छुटकारा पाकर पैलेस में आ चुके हैं, जेल से महल में आ चुके हैं। जेल कौन सी जेल थी? पाप की जेल के अंदर हम बंधे हुए थे, लेकिन अब हम जो है यीशु मसीह के महल के अंदर हम सभी लोग आ गए हैं। ये उद्धार, ये सुसमाचार हमारे जीवन में आने के बाद हर एक पापी को जो है नीचे, गटर मोस्ट करके हम इंग्लिश में कहते हैं, गटर मोस्ट टू द अपर मोस्ट, यानी कि नीचे से लेकर ऊंचा उठाती है। सो आज ये सुसमाचार सुने हुए जितने भी लोग उद्धार को पाए हैं, मेरे प्रिय भाई और बहनों, एवरीबडी दोज हु आर लिसनिंग, जिन्होंने भी जो है VBS के अंदर अपने जीवन को दिए हैं, यूथ रिट्रीट्स के अंदर अपने जीवन को सौंपे हैं, मुक्ति मिशन के रिट्रीट्स के अंदर अपने जीवन को सौंपे हैं, WSCS रिट्रीट में जिन्होंने अनुभव किया है, एवरीबडी you have heard the gospel and the gospel had the power to bring the salvation in your life. वो पावर, वो सुसमाचार की सामर्थ्य जो है आपके जीवन को बदल दी है। और इसीलिए यहाँ से शुरुआत हुई है। वो पावर को, सामर्थ्य को और आगे बरकरार रखे। कैसे रखे? हम वहां से आने के बाद हो सकता है कि वापस हम कहीं अपने जीवन के अंदर पापों में गिर जाते हैं, बट यहाँ पर इस पापों से छुटकारा पाने के लिए, एवरीडे के पापों से छुटकारा पाने के लिए परमेश्वर जो है और एक चीज के उपलब्ध किया है, दैट इज द पावर ऑफ क्राइस्ट ब्लड। यीशु मसीह का लहू,
यीशु मसीह के लहू के सामर्थ्य को जो है आज मेरे लिए तुम्हारे लिए उपलब्ध करके रखा है। एक गीत हम गाते हैं जिसका इंग्लिश में जाता है, देयर इज पावर, पावर, वंडर वर्किंग पावर इन द ब्लड ऑफ द लैम्ब। सामर्थ्य है यीशु के लहू में जो है सामर्थ्य है। आज सच में जो है इस यीशु के लहू के अंदर इतना सामर्थ्य है कि वो मेरे सारे पापों को केवल धोकर शुद्ध नहीं करता है, बल्कि मुझे जो है एक हिम के समान, बर्फ के समान, मुझे एक सफेद, एक उस तरह का रंग जो है मुझे दे देता है। इसीलिए यीशु मसीह जो है, परमेश्वर जो है, यशायाह उसका 1 अध्याय 18 और 19 वचन में हम सभी लोगों को पुकार कर कहता है, तुम्हारे पाप लाल रंग के क्यों ना हो, मैं उसे जो है हिम के समान सफेद बना दूंगा। तुम्हारे पाप जो है किसी भी तरह से कितने भी लाल क्यों ना हो, मैं उसे जो है वूल के समान उसे सफेद करूंगा कहकर वो कहता है। तो आज मैं और आप अपने जीवन में, इस जीवन में जीते समय हर एक व्यक्ति, हर एक संत हम कहे, हर एक व्यक्ति, हर एक विश्वासी जो है, हम कहीं ना कहीं हर ना दिन कहीं न कहीं किसी न किसी रीति से हम पाप कर बैठते हैं। लेकिन इस पाप के द्वारा हम अपने आप के सामर्थ्य को जो है कम नहीं करना है, बल्कि इस समय यीशु मसीह के लहू के सामर्थ्य को याद करते हुए हमें घोषणा करनी है। 1 यूहन्ना उसका 1 अध्याय 7 वचन कहता है कि अगर हम उसे घोषणा करते हैं, उसके पास आते हैं पश्चाताप कर कर, तो वो परमेश्वर जो है हमारे पापों को क्षमा करके हमें शुद्ध कर देता है। इब्रानियों उसका 10वां अध्याय 19वां वचन ये कहता है, द ब्लड ऑफ क्राइस्ट गिव्स अस होली बोल्डनेस टू एंटर इनटू द होलीएस्ट। परमेश्वर पवित्र होने के कारण उस पवित्रता के अंदर मुझे जाने के लिए यीशु मसीह का लहू मुझे शुद्ध करती है। सो आई नीड टू आस्क गॉड दैट परमेश्वर तेरे लहू से मुझे धोकर वापस से शुद्ध कर। एवरी टाइम वी कम टू द थ्रोन ऑफ ग्रेस, परमेश्वर की जो सिंहासन के पास उपस्थिति में जब आते हैं, हर एक बार हमें ये कहना है कि लॉर्ड, ये पाप की जो गिल्ट है मेरे अंदर से निकाल दे, और फिर एक बार पिता परमेश्वर तेरे पवित्र लहू, पवित्रता में मुझे प्रवेश करने के लिए मुझे मदद कर करके हमें ये कहकर आगे बढ़ते रहना है। प्रिय लोगों, सो टुडे वन ऑफ द थिंग इज दिस, हर एक शैतान जो है ये प्रयास करता है, खास करके विश्वासियों को, सेवकों को, और जो भी लोग परमेश्वर की सेवा में हैं, वो सारे लोगों को डिस्करेज करती है। किस बात से? हो सकता है एक कोई ना कोई ऐसे पाप या कोई ना कोई ऐसी बातें आपके अंदर है जो आपको जकड़ कर रखी है, वो और खींचना चाहते हैं। लेकिन आज परमेश्वर ये कहता है, उससे बड़ा सामर्थ्य जो है तुम्हारे अंदर है, उससे बड़ा सामर्थ्य मैंने तुम्हें दिया है। इसीलिए 1 यूहन्ना के अंदर ये कहता है, तुम्हारे अंदर जो है वो जो है बाहर के रहने वाले से ज्यादा सामर्थ्यवान है। इसीलिए जो तुम्हारे अंदर है उनके ऊपर निर्भर रहो। मसीह का लहू जो है हमारे लिए उतना सामर्थ्य देता है कि हमारे बातों के ऊपर जय पाले। इसलिए शैतान के झांके में ना आते हुए हम अपने आप को जो है सौंपना है। किस बात से हमें सौंपना है, क्या करना है, कैसे पता है? एक उदाहरण में यहाँ पर देना चाहूंगा। नदी के अंदर जो है नीचे पेबल्स होते हैं, मतलब पत्थर होते हैं। पत्थर जो है हमेशा उस पानी के अंदर अपने आप को उलटते आते हैं और वो बहुत ही स्मूथ बनते जाते हैं। ठीक उसी तरह मेरा और तुम्हारा जीवन जो है आज यीशु मसीह के लहू के अंदर हमेशा धोते रहना है, अपने जीवन को धोते रहना, शुद्ध होकर हम परमेश्वर के सम्मुख में आने वाले हैं। प्रिय लोगों, आज इसलिए हम अपने ताकत से नहीं, बल्कि परमेश्वर के लहू के ताकत से जो है अपने आप को शुद्ध कर सकते हैं। यूहन्ना जो है प्रकटीकरण के अंदर 7वें अध्याय के 14वें वचन में हम देखते हैं कि वहां पर एक ऐसे झुंड थे, जो लोग, बहुत बड़े झुंड थे, जो लोग परमेश्वर के लिए आराधना कर रहे थे अपने हाथों में डालियों को लेकर। उस समय जो है कहते हैं कि ये कौन है? तब वो ये कहते हैं कि ये सारे लोग जो है बहुत सारे पीड़ा, दर्द देने की तकलीफों के से निकल कर उनके वस्त्र जो है शुद्ध हो चुके हैं। कैसे? प्रभु यीशु मसीह के मेमने के लहू के द्वारा उन शुद्ध हो चुके हैं। दैट शोज, वो दिखाती है कि आज हम में से बहुत सारे लोग उस तरह से शुद्ध होकर के आएंगे। सो एवरी डे, एवरी टाइम वी नीड टू क्लेम दिस पावर ऑफ द ब्लड। यीशु मसीह के लहू को हमारे अंदर जो है घोषणा करनी है। तो पहले मैंने बताया, हमारा आत्मिक जीवन पावर ऑफ द गॉस्पेल, सुसमाचार के सामर्थ से शुरुआत होती है। उसको आगे बढ़ाने के लिए पवित्र लहू, यीशु मसीह का पवित्र लहू, यीशु मसीह की सामर्थ जो लहू के अंदर है वो हमें शुद्ध करती है। थर्ड जो है द पावर ऑफ गॉड्स वर्ड, परमेश्वर का वचन जो है हमें
ताकत देती है, हमें पौष्टिकता देती है, हमें सीधा खड़ा करती है, गिव्स द नरिशमेंट, यू नो। हो सकता है कि हमें से लगता है कि हम वचन बार बार इस सेम बातों को सुने, इट इज नॉट सेम, जस्ट लिसन टू दिस, पावर ऑफ गॉड्स वर्ड। परमेश्वर जब उन्होंने सारी सृष्टि की रचना की, कैसे किया? उन्होंने अपने शब्दों को बोलकर कहा। उन्होंने हिब्रूज चैप्टर 11 वर्स 3 के अंदर हम पाते हैं, परमेश्वर ने कहा कि उजियाला हो जाए तो उजियाला हो गया। परमेश्वर ने कहा कि पेड़ उग जाए, पेड़ उग गया। परमेश्वर ने कहा कि सूरज और चांद तारे सब बन जाए, बन गए। एवरीथिंग बाय हिज वर्ड। सो देयर वाज पावर इन द वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर के वचन के अंदर एक सामर्थ्य है, और वही सामर्थ्य आज भी है। किसके अंदर? ये परमेश्वर का वचन जो है मेरे पास, हमारे पास, ये वचन के अंदर आज भी सामर्थ्य है। वो वचन अगर उस समय पर इस सारे सृष्टि की रचना कर सकती है, वही वचन आज मेरे जीवन में उस सामर्थ्य को दे सकती है। आज जिस तरह की मैं निराशा में क्यों ना हो, जिस तरह की हताशा में मैं क्यों ना हो, जिस तरह से भी थका हुआ क्यों ना हो, जिस तरह से मानसिक रूप से मैं दबा क्यों ना हो, लेकिन इन सारी बातों को निकालने वाला कौन है पता है? वो है परमेश्वर का वचन। परमेश्वर का वचन जो है मुझे ये सारी बातों से निकाल कर मुझे जो है एक नई ताकत देता है। यिर्मयाह उसका 23वां अध्याय 29वें वचन में ये कहता है, मेरा वचन जो है एक आग के समान है, मेरा वचन जो है एक हथौड़े के समान है जो पत्थरों को तोड़ती है। यानी कि आज ये वचन जो है लोगों के हृदय, हमारे जीवनों को तोड़कर एक नए सिरे से हमें बनाते हैं। और यही नहीं बल्कि परमेश्वर का वचन एक आग के रूप में मेरे जीवन में रहने वाले हर एक गंदगी को निकालकर मुझे प्योर सोना यानी कि प्योर गोल्ड के समान मुझे बना देती है। जितना इंसान के आर्गुमेंट्स में जो चीजें हम जीत नहीं सकते हैं, वो वचन के द्वारा हम जीत सकते हैं। आज मेरे जीवन के अंदर किसी भी तरह की तकलीफ क्यों ना हो, बट गॉड्स वर्ड विल एड्रेस एवरीथिंग। हर एक चीजें जो है परमेश्वर के वचन के द्वारा हमें मिल जाती है। खासतौर से अगर हम देखते हैं, ये है कि बहुत सारे लोग अगर हम चंगाई को पाना चाहते हैं, यू नो, देयर इज ए पावर इन द गॉड्स वर्ड। परमेश्वर के वचन के अंदर एक सामर्थ्य है। जब इस्राएली लोग इस सारे 40 साल वो चले थे, 40 साल में उनको केवल मन्ना ही नहीं मिला, बल्कि परमेश्वर का वचन ये कहता है कि वे सारे लोग हीलिंग को भी पाए, चंगाई को भी पाए। कैसे? उनके वचन के द्वारा। मैं नहीं कहता, वचन कहता है। भजन संहिता 107 20वां वचन के अंदर हम पाते हैं, दैट गॉड सेंट हिज वर्ड एंड हील्ड देम। परमेश्वर के वचन के द्वारा उनके जीवन में चंगाई को उन्होंने प्राप्त की है। यीशु मसीह एक सेनापति के विश्वास के बारे में जिक्र करते हैं, जिन्होंने कहा, यीशु तेरे एक वचन से तू यहां से कह दे, मेरा नौकर जो है घर में चंगा हो जाएगा। व्हाट अ वर्ड! एक वचन तेरे यहां से कह दे तो मेरा नौकर जो है चंगाई को पा लेगा। और ये सारी हीलिंग मिनिस्ट्री, यीशु मसीह ने जितने भी चंगाई की मिनिस्ट्री की है, मत्ती इसके बारे में ये कहता है, मत्ती उसका 8वां अध्याय 16 वचन में, कि उन्होंने दुष्ट आत्माओं को अपने शब्दों से निकाला और सारे लोगों को, सारे बीमारियों को उन्होंने अपने शब्दों से चंगाई दी है। सो देयर इज पावर इन द वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर के वचन के अंदर जो है एक सामर्थ्य है। नीति वचन उसका 4वां अध्याय 20 से लेकर 22 वचन जब हम पढ़ेंगे, ये परमेश्वर का वचन मेरे लिए फिजिकली नहीं, मेंटल ही नहीं, आत्मिक तौर पर ही नहीं, बल्कि पूर्ण रूप से द होलिस्टिक वे से मुझे एक हेल्थ को देती है। और इसीलिए पतरस कहता है, पहला पतरस का 2वां अध्याय 2वां वचन, तुम एक बच्चों के समान, जिस तरह से बच्चे एक दूध के लिए तरसते हैं, दूध के लिए चाहते हैं, वैसे तुम भी जो है परमेश्वर के वचन के लिए चाहो कहकर कहता है। परमेश्वर का वचन कहता है, जैसे एक सूखी भूमि पानी के लिए तरसती है, एक बीज जो है बीज बोने वाला एक बीज के लिए अपने हाथों में लेकर चलता है, जैसा एक खाने के लिए एक रोटी को, एक भूखे के लिए एक रोटी को तरसती है, वैसे ही परमेश्वर का वचन आज मेरे लिए है प्रियो। यशायाह उसका 55वां अध्याय 10वां वचन कहता है, Isaiah 55:10 it says, you know, when we meditate on this word of God, God gives, it refreshes us। परमेश्वर इसके द्वारा एक नई सामर्थ, एक नई ताकत को मेरे जीवन में देता है। और एक वचन सुनो, परमेश्वर का वचन ये कहता है, यशायाह उसका 55वां अध्याय 11वां वचन, My word shall not return to me without the fruit। मेरा जो वचन जब जाता है लोगों के जीवनों में, वो वापस बिना फल के नहीं आता है। सुन रहे हैं आप? तो जब आपके जीवन में ये वचन जब आप पढ़ेंगे,
तो जब पढ़ेंगे तो परमेश्वर आपके जीवन में वचन के द्वारा आपके अंदर जा रहा है, तो ये वापस बिना फ्रूट के नहीं आएगा। तो इसका मतलब मैं हताशा में हूं, तो ये वचन मेरे लिए जो है निराशाओं को हटाकर एक नए रीति से देगा। मैं चंगाई के लिए प्रार्थना कर रहा हूं, वचन मेरे अंदर जाकर मैं चंगाई के लिए मेरे लिए जीवन में लेकर आएगी। जब मैं कंफ्यूज हूं क्या करना है मुझे पता नहीं, ये वचन मेरे लिए गाइडेंस के रूप में आकर मुझे आगे अगुवाई करेगी। तो गॉड्स वर्ड इज द पावर ऑफ गॉड्स वर्ड, एक्सेप्ट दिस पावर ऑफ गॉड्स वर्ड। इसीलिए दाऊद राजा भजन संहिता उसका 119:28 वचन में कहता है, स्ट्रेंथन मी अकॉर्डिंग टू योर वर्ड। परमेश्वर तेरे वचन के द्वारा जो है मुझे तू सामर्थ्य दे। और एक वचन सुनिए, यशायाह उसका 66वां अध्याय 1 और 2 वचन कहता है कि जो परमेश्वर के वचन के लिए कांपते हैं, परमेश्वर उनका सम्मान करता है। God honors those who trembles or those who honor the word of God। परमेश्वर के वचन को जो एक सम्मान करते हैं, परमेश्वर उनको सम्मान करता है। So this is third thing that you and I need to experience this power of God। परमेश्वर के सामर्थ्य को हम परमेश्वर के वचन के द्वारा अपने जीवन में अनुभव कर सकते हैं। Fourth thing, the power of God's presence। परमेश्वर की स्वयं की उपस्थिति आज मेरे जीवन में एक सामर्थ्य को देती है। द पावर ऑफ गॉड्स प्रेजेंस, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये बात। भजन संहिता 139वां अध्याय 7 से 9 वचन इस बात को कहता है, परमेश्वर हर एक जगह पर उपस्थित है। वचन ये कहता है, अगर मैं स्वर्ग में जाऊं वहां पर है, पाताल में जाऊं वहां पर है, समुद्र के अंदर जाऊं वहां पर है, wherever I go you are there। But God is everywhere। लेकिन प्लीज सुनिए इस बात को, लेकिन वो परमेश्वर जो है व्यक्तिगत रूप से हमसे मिलना चाहता है, व्यक्तिगत रूप से अपनी महिमा को हमारे जीवन में प्रकट करना चाहता है। उत्पत्ति के पुस्तक में जब हम देखते हैं, द पैट्रियार्क्स यानी कि जितने भी लोग थे, ये सारे लोगों ने फिजिकली परमेश्वर का अपने उपस्थिति को अपने जीवन में अनुभव किया। आदम और हव्वा, दे हैड अ फेलोशिप विद गॉड। जैसे उन्होंने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया, उसके बाद वो टूट गया करके हम देखते हैं। नोहा वॉक्ड विद गॉड, परमेश्वर के साथ चला। अनोक वॉक्ड विद गॉड, परमेश्वर के साथ में चले। एब्राहम, ही वॉज ऑलवेज लिसनिंग एंड उन्होंने परमेश्वर के वचन को सुनते थे, उनके साथ बातें करते थे। ही ऑल्सो वॉक्ड विद गॉड। आइजैक lived and walked with God, इसहाक परमेश्वर के साथ चले। जेकब स्वयं परमेश्वर के साथ जो है उन्होंने युद्ध लड़ा करके देखते हैं। इतना ही नहीं, बल्कि यूसुफ के बारे में जब हम सुनते हैं, जोसेफ के बारे में, जोसेफ को सबने छोड़ दिया, उनके भाइयों ने, उनके सभी लोगों ने छोड़ा, लेकिन परमेश्वर उनके साथ था करके वचन कहता है। जेनेसिस चैप्टर 39 वर्स 2, जेनेसिस चैप्टर 40, there are some verses which say that the Lord was with Joseph। परमेश्वर उनके साथ था करके वचन कहता है। सो परमेश्वर की उपस्थिति जो है आज मेरे और तुम्हारे साथ हमेशा रहती है। बट यू नो व्हाट इज देयर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आज, ये है कि हमें इस परमेश्वर की उपस्थिति सभी जगह पर एक समय रहते समय, लेकिन इस उपस्थिति को आज मैं व्यक्तिगत रूप से अनुभव करना कर सकते हैं। सो देन आई रिसीव दिस गॉड्स पावर ऑफ गॉड्स प्रेजेंस। तब मैं परमेश्वर की उपस्थिति के सामर्थ्य को अपने जीवन में अनुभव कर पाता हूँ। गॉड्स प्रेजेंस इज एक्सपीरियंस डिफरेंटली बाय इंडिविजुअल्स। सो वी नीड टू डेवलप दैट इंटीमेसी। मुझे उस परमेश्वर के साथ उसका एक घनिष्ठ संबंध जो है उसके साथ जब मैं बनाऊंगा, तब परमेश्वर जो है वो सामर्थ्य को मेरे जीवन में देता है और चलाता है करके हम देखते हैं। यूसुफ के जीवन के बारे में हम सभी लोग जानते हैं, कैसे वो एक सर्वेंट से जो है इतने बड़े प्राइम मिनिस्टर बन गए, एक नौकर से प्राइम मिनिस्टर बन गए। व्हाई? बिकॉज द लॉर्ड वाज विद हिम। परमेश्वर उनके साथ था और वो परमेश्वर की उपस्थिति को अपने जीवन में वो अनुभव कर रहे थे। परमेश्वर की उपस्थिति के अंदर एक आनंद है। भजन संहिता 16:11, इन योर प्रेजेंस देयर इज अ फुलनेस ऑफ जॉय। एक अति आनंद है, परिपूर्ण आनंद परमेश्वर के उपस्थिति में हमें मिलती है। प्रेरितों के काम 2 अध्याय 28 वचन एक कहता है, यू विल मेक मी फुल ऑफ जॉय इन योर प्रेजेंस। परमेश्वर तो अपनी उपस्थिति में मुझे बहुत ऐसे आनंद कर देता है। सो टुडे एज वी आर लिविंग आवर लाइफ, लेट अस एक्सपीरियंस दिस प्रेजेंस ऑफ गॉड। परमेश्वर की उपस्थिति के सामर्थ्य को अपने जीवन में अपनाएं, अनुभव करें। फाइनली 5th थिंग, 5वीं बात यह है, यू एंड आई नीड टू
एक्सपीरियंस दिस पावर ऑफ गॉड स्पिरिट। परमेश्वर की आत्मा की सामर्थ्य को जो है आज हम सभी लोग अनुभव करना है। पुराने नियम के अनुसार, पुराना वाचा के अनुसार सब लोगों ने तेल से अभिषेक पाकर, कुछ लोगों ने परमेश्वर की आत्मा को भी पाया। लेकिन नए नियम में जब हम आते हैं, यहाँ पर हम सभी के लिए पवित्र आत्मा की अभिषेक उपलब्ध है। वचन कहता है प्रेरितों के काम 2 अध्याय 17 और 18 वचन कि सभी बच्चों के ऊपर, परमेश्वर के जितने भी संतान हैं, वे सारे लोगों को परमेश्वर अपनी आत्मा से भर दिया है। हर एक विश्वासी को जो है परमेश्वर ने अपनी आत्मा से भर दिया है। और इसीलिए आज मुझे और तुम्हें जो है उस पवित्र आत्मा को अनुभव करना है। वचन क्या कहता है? प्रेरितों के काम 1 अध्याय 8वां वचन, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम सामर्थ को पाओगे। एवरीबडी विल रिसीव द पावर ऑफ गॉड बाय द होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा के द्वारा जो सामर्थ्य मिलते हैं आज मुझे और तुम्हें जो है मिलते हैं। आज मैं और आप अपने जीवन के अंदर इस जीवन को एम्पावर्ड रूप में जीना है, पूरे सामर्थ्य के साथ अगर जीना है तो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य को अपने जीवन में अनुभव करना सीख ले प्रिय लोगों। यस, 1 कोरिन्थियों उसका 2 अध्याय 4 और 5वां वचन कहता है, तुम्हारा विश्वास जो है मनुष्य के ज्ञान के अंदर नहीं बल्कि परमेश्वर के सामर्थ्य के अंदर है। और वो परमेश्वर का सामर्थ्य हमें कहाँ से मिलता है? पवित्र आत्मा से मिलते हैं। द पावर ऑफ गॉड स्पिरिट हेल्प्स अस टू लिव पावरफुल लाइफ। हम सभी लोग ये अनुभव कर सकते हैं और कह सकते हैं कि पवित्र आत्मा के द्वारा हम सभी लोग उस सामर्थ्य को प्राप्त करते हुए एक सामर्थ्य का जीवन जी सकते हैं। पौलुस के जीवन को देखिए, he lived his life with the Holy Spirit. स्टीफन की लाइफ को देखिए, he lived his life with the Holy Spirit. और उसी तरह से जॉन वेस्ली के लाइफ को देखिए, जब मेथोडिस्ट चर्च की स्थापना की है, उनके बायोग्राफी को पढ़ते समय हम ये देखते हैं कि उनका जीवन जब उन्होंने वापस से अर्पण किया, उस समय पवित्र आत्मा को उनके जीवन में उन्होंने पाया और उसके बाद उन्होंने कभी वापस लौटा नहीं है। He has always gone ahead। और आज भी हम इस बात का साबित या सबूत देखते हैं कि मेथोडिस्ट सिंबल के अंदर क्रॉस है और उसके बाजू में एक फ्लेम है। वो फ्लेम क्या दर्शाती है पता है? वो फ्लेम जो है पवित्र आत्मा को दर्शाती है। आज प्रिय लोगों, हम सभी मेथोडिस्ट कलीसिया के सारे लोग इस बात को ध्यान में रख ले कि उस पवित्र आत्मा के सामर्थ्य को अपने जीवन में अपनाएं और उनके लिए जिए। फाइनली माय डियर फ्रेंड्स, आई जस्ट वांट टू एनकरेज एवरी वन ऑफ अस। आज हम सभी लोगों को मैं उत्तेजना, एक प्रोत्साहन देना चाहता हूँ कि हम अपने जीवन में जितने भी लोगों ने यीशु मसीह को अपने जीवन में अपनाए हैं, प्लीज मूव अहेड, गो अहेड, आगे बढ़ते जाए। यीशु का लहू हमारे लिए उपलब्ध है, यीशु का वचन हमारे लिए उपलब्ध है, यीशु की उपस्थिति हमारे लिए उपलब्ध है, यीशु मसीह के द्वारा मिला हुआ पवित्र आत्मा आज हमारे लिए उपलब्ध है, ताकि हम सभी लोग उस सामर्थ्य के जीवन को अपने जीवन में जिए। यीशु मसीह ने स्वयं कहा, तुम्हारे इस जीवन के अंदर, इस संसार में बहुत सारे क्लेश तो होंगे, लेकिन डरो नहीं, क्योंकि मैं इस संसार के ऊपर जय पाया हूँ। और वो यीशु मसीह आज मेरे पास रहते समय मुझे क्यों जो है हार का जीवन जीना है, मुझे जो है एम्पावर्ड लाइफ यानी कि सामर्थ का जीवन मुझे और तुम्हें जीना है। परमेश्वर हम सभी लोगों को सामर्थ का जीवन जीकर उस परमेश्वर के साथ में उनके राज्य में हम रहे, ऐसे हम प्रार्थना करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। ಪ್ರೀತಿ ಸ್ವರೂಪನಾದ ತಂದೆಯಾದಂಥ ದೇವರೇ, ಕೃಪಾಭರಿತನಾಗಿ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ನಡೆಸಿದೆ ಸ್ವಾಮಿ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ। ಈ ದಿವಸ ಕರ್ತನೆ ಕೊಟ್ಟಂತ ಈ ವಾಕ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ। ನಿನ್ನ ಇಚ್ಛೆ, ನಿನ್ನ ಆಶೆ ಸ್ವಾಮಿ ಒಂದೇ ಉಂಟು, ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನಿನ್ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಜನರ ಮುಂದೆ ಪ್ರಕಟಿಸಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ। ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ದಿವಸ ಸ್ವಾಮಿ ನಾವೆಲ್ಲ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳು, ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು, ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರಿಯರು ಸ್ವಾಮಿ, ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ ಬಂದು ನಾವು ಇದನ್ನು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ। ನಿನ್ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ತುಂಬಿಸು, ನಿನ್ನ ಸುಸಂದೇಶದಿಂದ, ಸುಸಮಾಚಾರದಿಂದ ಸ್ವಾಮಿ ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಣೆಗೆ ತಂದಿದೆಯಾ ಸ್ವಾಮಿ। ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಪವಿತ್ರವಾದಂಥ
ರಕ್ತದಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ತೊಳೆದು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಿ ನಡೆಸಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ. ನಿನ್ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವುಳ್ಳಂತ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗೊಳಿಸಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ. ಏನ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯಿಂದ ಸ್ವಾಮಿ ನಮ್ಮನ್ನು ತುಂಬಿಸಿ ನಮ್ಮನ್ನು ನಡೆಸಪ್ಪ. ಏನ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಅಭಿಷೇಕದಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ಮುಟ್ಟು ಏನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಾದಂಥ ಜೀವನದಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ನಡೆಸಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಆಮೇನ್. ಪ್ರೈಸ್ ಲಾರ್ಡ್. ದೇವರ ನಾಮಕ್ಕೆ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಲಿ. ಸಭಿಕರಿಗೆ ತಿಳಿಸುವಂತ ಪ್ರಕಟಣೆಗಳು. ನಮ್ದು ಭಾನುವಾರದ ಆರಾಧನೆ ಇನ್ನೂ ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಸಂಡೇ ದಿವಸ ಬೆಳಗ್ಗೆ 11 ಗಂಟೆಗೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಲೈವ್ ನಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ऑनलाइन सर्विस हमारे संडे के दिन सुबह 11 बजे यूट्यूब के द्वारा चलाई जाएगी. बुधवार की आराधना बुधवाರದ ಮಧ್ಯವಾರದ ಆರಾಧನೆ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಲೈವ್ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಯವನಸ್ಥ ಮಕ್ಕಳ ಕಡೆಯಿಂದ ನಡೆಸಲ್ಪಡುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ MYF ಮತ್ತು TCF ಕೂಟ ಪ್ರತಿ ಭಾನುವಾರ ಸಾಯಂಕಾಲ 5 ಗಂಟೆಗೆ ನಡೆಸಲ್ಪಡುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ. ಮದುವೆಯ ಪ್ರಕಟಣೆ. ಮಿಸ್ಟರ್ ವನ್ನಪ್ಪನೋರ್ ಇವರ ಮಗನಾದಂಥ ಮಿಸ್ಟರ್ ಸುನೀಲ್ ಎಂಬ ಆತನಿಗೂ, ಮಿಸ್ಟರ್ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಇವರ ಮಗಳಾದಂಥ ಭಾಗ್ಯಶ್ರೀ ಎಂಬ ಆಕೆಗೂ ಇವರ ಪರಿಶುದ್ಧ ವಿವಾಹವು ದಿನಾಂಕ 25 ಜೂನ್ 2021 ಬೆಳಗ್ಗೆ 10 ಗಂಟೆಗೆ ದ ಮೆಥಡಿಸ್ಟ್ ಕನ್ನಡ ಚರ್ಚ್ ಧಾರಾವಿ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲ್ಪಡುವಂಥದ್ದಾಗಿದೆ. ಇದು ಸಾರುವಂಥದ್ದು ಮೊದಲನೇ ಸಲ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದಾಗಿದೆ. ಈ ಮದುವೆಗೆ ಏನಾದರೂ ಅಡ್ಡಭ್ಯಂತರವಿದ್ದರೆ ನೀವು ಲಿಖಿತದ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಸಭಾಪಾಲಕರಿಗೆ ಮೊದಲೇ ಸೂಚನೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಎರಡನೇದಾಗಿ ನರ್ಸಿಂಗ್ದು 1 year ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೋರ್ಸ್ YWCA ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲ್ಪಡುತ್ತಾ ಉಂಟು. ಯಾರಿಗಾದರೂ ಈ ಕೋರ್ಸನ್ನು ಮಾಡಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿದ್ದರೆ ದಯಮಾಡಿ ನೀವು ನನಗೆ ಸೂಚನೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಇದು 10th ನಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆದವರಿಗೆ ಮತ್ತು 12th ಯಾರು ಪಡೆದರೆ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಅವರು ಜನರಲ್ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆದರೆ 10th ನಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, 10th ನಲ್ಲಿ 1-2 ಫೇಲ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಆದರೆ ಸಹ ಅವರ ಸಲುವಾಗಿ ಕೋರ್ಸ್ ಉಂಟು. ದಯಮಾಡಿ ಅವರು ಇದರಲ್ಲಿ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ ಸೂಚಿತ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುವಂತನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇರೋಣ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಈ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಸಹ ಬೇಗನೆ ತೆರೆಯಲಿ, ನಮ್ಮ ಸಭೆಗಳು ತೆರೆಯಲ್ಪಡಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. ದೇವರು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ. ಆಮೇನ್. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. ಪ್ರೀತಿ ಸ್ವರೂಪನಾದ ತಂದೆಯಾದಂಥ ದೇವರೇ, ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಂತ ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ನನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಹೇಳಿ ಮತ್ತೊಂದು ಸಲ ಎಲ್ಲರನ್ನು ನಿನ್ನ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ತರುತ್ತಾ ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಯೇಸುವಿನ ಒಂದೇ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಬೇಡುತ್ತೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಆಮೇನ್. ಈ ದೇವ್ಯವಾದ ಪ್ರೀತಿಗೆ ನಾ ಬದಲೇನು ಕೊಡುವೆ, ಸಂಪತ್ತು ಪ್ರಾಣಾಯಾವತ್ತು ಕೊಟ್ಟಾಗ್ಯೋ ಏನು ಸಾಲದು. ಆಮೆನ್. ಈಗಲೂ ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಾದಂಥ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಕೃಪೆಯು, ತಂದೆಯಾದ ದೇವರ ಪ್ರೀತಿಯು, ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನ ಜೊತೆ ಸಹವಾಸವು, ತ್ರೇಕ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಇಂದಿಗೂ ನನಗೂ ಸದಾಕಾಲ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವುಳ್ಳದಂಥ ಜೀವಿತವನ್ನು ಜೀವಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನೆಲೆಯಾಗಿರಲಿ ಸ್ವಾಮಿ. ಆಮೇನ್. God bless you all. Amen. బలమంతా నీవేనయ్యా, నా బలమంతా నీవేనయ్యా, నా బలమంతా నీవేనయ్యా. అలలు లేచినను, తుఫాను ఎగసినను, అలలు లేచినను, తుఫాను ఎగసినను, కాపాడే దేవుడవయ్యా. అవునయ్యా, నీవు ఎన్నడూ
బలమంతా నీ